O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. आज का टॉपिक है When does the Guru appear in the path of the discipleship? मतलब गुरु कब प्रकट होता है? एक जो चेला बनना चाहता है, जो चेले की जिंदगी होती है, जो आगे चल के गुरु बनेगा, उसकी जिंदगी में कब आता है? तो इसके ऊपर आज चर्चा होगी। और स्पीकर हैं हमारे शंकर लॉज की बहुत एक डेडिकेटेड मेंबर हैं और दिल्ली फेडरेशन की सेक्रेटरी हैं। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर मानसी भगत से कि वो इस लेक्चर को अपना स्टार्ट करें। Good evening, everyone. So, because I'm starting with a lecture in Shankar Lodge, so I'll first explain you how this lecture came about. A lot of people are coming to Shankar Lodge lectures and asking this kind of a question. And since it appears in the public forums from time to time, and since I have been attending physical lodge meetings, physical public lodge meetings in Shankar Lodge regularly for the past many years, I think since 2015 or 16. So that's how my answers appeared to me over a period of so many years. So this is a collection of lectures which I have concentrated in a few slides, and these lectures were given in the public forum by Mathurji and Rajiv Gupta sir. So this is an amalgamation of everything that I have learned through them. So thank you to both of them, Rajiv Mathur ji and Rajiv Gupta sir. अब जब हम लेक्चर को शुरू कर रहे हैं, आई विल गो इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश सो दैट इट इज इजीली एक्सेसिबल टू एवरीबडी. आई होप यू गाइस कैन सी द स्क्रीन. And my first question is to everybody who is attending the lecture right now. The first question is that you have to use your own intelligence, all right? Focus on yourself within and ask yourself, why do you usually attend public meetings? Why do you attend YouTube videos which are connected to spirituality? Why do you gather information from anywhere amongst books, YouTube videos, Instagram, whichever public forums, wherever you are in, even in the physical meetings, you have been attending public lectures? Why do you go to the lectures which are connected to spirituality? That is because we all have a hidden motive or an intention. It gets hidden because we usually forget it during the years. As time passes by, हम लोग भूल जाते हैं. We enjoy the lectures because it becomes more of a habit. So it's an unconscious habit we have been building on. तो जो हमारा initial motive या intention होता है जिससे हम join करते हैं वो हम भूल जाते हैं. That's why I called it as a hidden motive. So basically we attend to the public lectures because our first motive to enter this path was to seek answers regarding what is higher life or who am I, or we were searching and hunting for answers. तो इस तरीके से we come about and visit many spiritual organizations. And right now we are all connected through Theosophy, through the Theosophical Society, and we are all here. So that means this is one of the spiritual organizations which is also giving and revealing information which can be of help to all of us. That is why we are here today. And we have been attending more lectures like this in the Theosophical meetings. So this is what the initial motive is. तो ये motive जो है या ये intention जो है हमारी, over the years, as we grow and mature in spirituality, sometimes what happens is Theosophical Society में आने के बाद we gather a lot of information. There are a lot of books. And जो theosophical literature है इतना vast है that we get confused कि हमें चाहिए क्या था? Why are we reading this book? What is in this book? Why are we reading about the planes of existence? Why are we reading about the natural laws? हम confused हो जाते हैं कि कभी हम कुछ पढ़ रहे हैं, कभी हम कुछ पढ़ रहे हैं. So we are picking up so many books. तो हमारा जो path सीधा सीधा चल रहा था ना कि जो intention थी उसको हमें भेदना था, हमें एंटर करना था टू फाइंड द पाथ फॉर आवरसेल्व्स, वो हम भूल जाते हैं.
और कंफ्यूज हो जाते हैं इतने सारे थियोसॉफिकल लिटरेचर के साथ। तो कई बार हम इंस्पिरेशन लूज कर जाते हैं और फिर पब्लिक मीटिंग्स को अटेंड करना छोड़ देते हैं। बट अभी क्या है, हमारा क्वेश्चन, आवर क्वेश्चन टू आवरसेल्व्स शुड बी टुडे दैट इज देयर अ वे फॉर मी थ्रू द पाथ ऑफ थियोसॉफी। अगर मेरा ये पाथ है एंड थियोसॉफी इस रास्ते से मैं जा सकता हूं, तो क्या थियोसॉफी मेरे को वो आंसर्स देगा? मीनिंग कि मेरा सबसे पहला क्वेश्चन मेरे को है, अगेन आई रिपीट, दैट इज देयर अ वे through theosophy, is there a path through theosophy for me as an individual? So the answer to this question is yes, there is a path, and there is a path of discipleship through this journey of theosophy. तो ये हम सबको पहले कन्विंस हो जाना है कि yes, there is a path. Now the second question comes कि अच्छा अगर पाथ है तो गुरु की जरूरत है, क्योंकि सारी जगह हमने यही सुना है कि गुरु की तो बहुत रिक्वायरमेंट होती है। तो गुरु कब है और कौन है और गुरु कैसे अपीयर होता है? देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस व्हिच पॉप अप कि हमें भी इनिशिएशंस करवानी है, हमें भी डिसाइपलशिप पे चलना है, पाथ पे, लेकिन ये डिसाइपल बनते कैसे हैं? व्हाट इज अ डिसाइपल, हु इज अ प्यूपिल, एंड व्हाट इज दिस पाथ? तो इसको हम थोड़ा सा अनवेल करेंगे थ्रू थियोसॉफी। सो दैट इज द lecture. The main lecture is when does guru appear in the path of discipleship. अब इसको आंसर करने के लिए हमें थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो लिटरेचर है, वास्ट लिटरेचर है, पहले हम उसमें समझते हैं हु इज अ गुरु, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गुरु इन थियोसॉफी। सो एक बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे बुक है, मास्टर्स एंड द पाथ, वन ऑफ द मेनी रेयर बुक्स व्हिच हैज बीन रिटन बाय बिशप C.W. लेडबीटर। और वो कहते हैं, उनकी बिल्कुल बुक की बिगिनिंग में ये फर्स्ट फ्यू लाइन्स है जिसमें आता है that the existence of perfected men is one of the most important of the many new facts which theosophy puts before us. तो वो कहते हैं कि एक नया फैक्ट है, मतलब we are revealing a new information that perfected men exist. Now what do you mean by perfected men? What is perfection? तो पहले हम perfection की definition को समझते हैं। So on the screen as I'm sharing, perfection की definition मैंने Google से उठाई है, and it says that perfection is a state of being flawless, complete, or of the highest excellence. So you are polishing yourself to become perfect. You are becoming an ideal. So you may be becoming the ideal in a skill that you are acquiring. If you are an artist, then you are sharpening your skills to become the perfect artist, the perfect musician, or the perfect speaker, right? So you are increasing your proficiency. तो जब हम प्रोफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं, हम अपनी फॉल्ट्स या डिफेक्ट्स या जो भी वीकनेसेस है उस स्किल को अक्वायर करने के लिए हम अपनी ही वीकनेसेस को कॉन्कर करके हायर जाते हैं। और जब हम हायर जाएंगे तो हमारी ग्रोथ होगी, हमारी वीकनेसेस कॉन्कर होंगी, हमारी ग्रोथ होगी और हम परफेक्शन को अचीव करेंगे। लेकिन जब यहाँ परफेक्शन आया तो यहाँ पे है द एक्ट ऑफ परफेक्टिंग, दैट इज द प्रोसेस इज ऑफ कंप्लीटिंग समथिंग, ताकि फाइनली आप इंप्रूव करते रहो। सो जब C.W. लेडबीटर ने ये वर्ड लिखा परफेक्टेड मैन, तो वो अब यहाँ वो क्या कहना चाहते हैं? ये तो थी अभी सिंपल डेफिनेशन ऑफ परफेक्शन। अब मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज परफेक्शन। जब परफेक्टेड बीइंग्स की बात करी जाती है, दीज परफेक्टेड बीइंग्स आर दोज मेन। हम मेन को मेन बोलते हैं, यूजुअली हम बीइंग्स बोलते हैं, बिकॉज दे हैव क्रॉस्ड द लेवल ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। उनकी जो जर्नी थी ह्यूमन एवोल्यूशन की, वो कंप्लीट कर चुके हैं। सो दे वर मेन और ह्यूमन बीइंग्स अर्लियर, and over a period of time, over the period of many reincarnations, they have conquered their human errors, their human failings. These people have become saintly in character. They have acquired virtues, moralities, and ethics. They have achieved that state of flawlessness, and they have learned the lessons that humanity is still learning. तो जो हम ह्यूमन बीइंग्स लर्न कर रहे हैं, दे हैव कॉन्कर्ड देमसेल्व्स, लर्नड ऑल द लेसन्स दैट ह्यूमैनिटी हैज टू लर्न, एंड देन दे हैव बिकम परफेक्टेड. सो दे हैव क्रॉस्ड आउट ऑफ द साइक्लिक रीबर्थ का पैटर्न, डेथ एंड बर्थ, डेथ एंड बर्थ. ये जो रीबर्थ का पैटर्न है वो कॉन्कर करके परफेक्टेड मैन बन गए. इसीलिए अब वो ह्यूमन एवोल्यूशन के बियॉन्ड जा चुके हैं, तो हम इन्हें परफेक्टेड बीइंग्स कहते हैं. तो उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस बिशप C.W. लेडबीटर लिखते हैं कि एक तो ये नया फैक्ट है, तो ये हम लोगों को
रियली क्लियरली अपने लिए समझना है कि थियोसफी में परफेक्टेड बीइंग्स एग्जिस्ट और वो ये क्लेम करते हैं. Next step that follows is, he says, it follows logically from the other great theosophical teachings of karma and evolution by reincarnation. So it's a very simple and small sentence, but it has a very deep, intricate meaning if we unfold this sentence slowly. So I'm just going to unfold this sentence now. He says it follows logically. अब वो कहते हैं कि लॉजिक कौन सा हमें लगाना है, कौन सा लॉजिक उन्होंने लगाया कि थियोसॉफिकल टीचिंग्स अगर आप अनवेल करोगे, अपने लिए अनलॉक करोगे, तो तीन नेचुरल लॉज है, कर्मा, एवोल्यूशन और रीइंकार्नेशन से वो जो परफेक्टेड बीइंग्स हैं वो परफेक्ट बने, वो हायर गए, या हम जिन्हें अडेप्ट्स बोलते हैं इन थियोसॉफी. तो उन्होंने क्या किया है, दे हैव पास्ड, एज आई सेड, आउट ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन. They have all achieved it through the road through which the humanity itself has to tread. So we as human beings also have to tread this path, because this is our journey. This has been their journey, and this is going to be our journey. And they have used karma, evolution, and reincarnation, meaning they have applied the law of karma. So this is a natural law. Once you understand the natural law, you will apply it. They have done so. They have applied this natural law, the law of karma. They have used this law of nature. उन्होंने इस law of nature, कर्मा को यूज किया अपने लिए, अपनी सेल्फ प्रोपेलिंग ग्रोथ के लिए, फॉर देयर ओन सेल्फ प्रोपेलिंग ग्रोथ. Growth means evolution, meaning going somewhere higher. All right, on a certain plane, on a certain journey, you are going higher. So you are evolving. Evolving means you are growing. So using this law of nature, the law of karma, they have evolved themselves, risen higher in hierarchy, in not just in one life, because this is not the work of one life, but it is the work of many lives through thousands of years. So they have reincarnated as human beings time and again. And then they have also achieved that goal or that purpose, which is also the definite journey, which is the purpose of the whole humanity. तो ये सारे ह्यूमन बींग्स पे एप्लीकेबल है. अब ये जो फैक्ट है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए, क्योंकि ये जो तीन चीजें हैं, कर्मा, एवोल्यूशन, रीइंकार्नेशन, हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है. और जो थियोसॉफिकल नॉलेज है, नॉलेज हमें जो दी गई है, या एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है जिसको ना हम बुक के फर्स्ट पेज में जब हम पढ़ते हैं तो हम यूजुअली बुक को जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और फर्स्ट लाइन ही भूल जाते हैं कि perfected beings exist, meaning there is a journey through the road of theosophy. तो ये हम सबको समझना है. अब जब रीइंकार्नेशन हुआ तो हम ये देखते हैं कि we can also see this reflection in our own ways, कि अगर हम कर्मा, रीइंकार्नेशन और एवोल्यूशन के प्रिंसिपल्स को यूज करेंगे तो हम भी इससे आगे मूव कर सकते हैं. अब फिजिकल वर्ल्ड में हम इसके एग्जाम्पल्स कैसे कैसे देख सकते हैं कि ग्रोथ हो रही है. हमें ये भी तो प्रूफ चाहिए कि ग्रोथ हो रही है. So as we look around us, people are in all stages of evolution. How do you see it? You can see it in their outer growth. जैसे कोई आर्टिस्ट है, कोई और बहुत अच्छा साइंटिस्ट है, कोई फिलोसोफर है, कोई अच्छा है रिलीजन में या म्यूजिक में या लिटरेचर, philanthropist है. All have been in the hierarchy either below or above, and people have been becoming better. That is why there is the जब हम बोलते हैं oh he's a great sportsman या he's the best actor, you know, जब हम बोलते हैं तो best क्यों बोलते हैं? Good, better, best. So there is good, there is better, there is best. So that means there is a hierarchy in growth. और ये growth जो है हम different human beings में at different ladder or different stages जहां जहां पे लोग खड़े हैं, on that rung of that ladder, people have been growing and evolving their skills. So ये जो outer skills है ये तो reflect हो जाती है nature में, क्योंकि हम देखते हैं कि ओ ये हमसे better गाने गा सकता है, ये हमसे better dance कर सकता है, जब हम ऑफिस में जाते हैं ये हमसे better administrative skills रखता है. So skills को हम सारे sharpen कर रहे हैं through our hard work. So all our amongst our all fellow beings, we can see that people have been growing and they are at various rungs of the ladder. So now looking at this, looking at all this in the physical world, we realized
that even amongst the humanity there is a human evolution, that there is a journey of perfect human attainment. However, this perfect human attainment is in different outer skills in the world. बट अब जब हम बात करते हैं ऑफ मेन हु हैव बीन ग्रेट इन स्पिरिचुअलिटी. Alright, we are not talking about people who are just evolving or sharpening their skills in the outer world. We are talking about those men who have perfected by crossing the journey of human growth. मतलब human growth के सारे lessons learn करके वो इसके beyond जाके adepts बने हैं. This is the vision that we must also have, क्योंकि इसी विजन से हम स्पिरिचुअलिटी में आगे चलेंगे. तभी हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हमें क्या क्वालिटीज चाहिए टू अटेन परफेक्शन. सो वी हैव टू रिफ्लेक्ट अपॉन दोज एडेप्ट्स कि उन्होंने अपनी स्किल्स को कैसे शार्पन किया, इनर स्किल्स को, इनर ग्रोथ के लिए, टू अचीव दैट पोटेंशियल ऑफ अडेप्टशिप विच इज द जर्नी ऑफ ऑल ह्यूमन एग्जिस्टेंस. सो नेक्स्ट मैं स्लाइड पे आई हूं जिसमें लिखा है the existence of perfected beings at the end of this long line of ever folding, ever unfolding of power, wisdom and love, and it is the most natural thing in the world. Why is it natural? Because applying the laws of nature as we see the human condition of existence now, we know that power can be unfolded further, wisdom can be unfolded greater, and love can always shine brighter. So who's an adept? Adept या जो masters या guru जो हम बोलते हैं थियोसफी में, वो बहुत डिफरेंट है फ्रॉम व्हेन यू लर्न इट थ्रू डिफरेंट स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस ऑल ओवर. तो वो कहते हैं कि अडेप्ट कौन है? एन अडेप्ट इज एन ऑल राउंड मैन. सो ही इज एन ऑल राउंडर. यू नो, he has not just evolved himself in one skill कि भाई म्यूजिक सीख लिया और हम परफेक्ट बन गए. नो, ऑल अराउंड डेवलपमेंट उन्होंने करी है. और ये ऑल अराउंड डेवलपमेंट किन किन क्वालिटीज में है? द क्वालिटी ऑफ डिवोशन, द क्वालिटी ऑफ लव, सिंपैथी एंड कंपैशन, ये सब परफेक्ट हो चुकी है. तो हमें इन क्वालिटीज को, इन स्टेटमेंट्स को, जिसमें मैं सिर्फ डिवोशन, लव, सिंपैथी कह रही हूँ या कंपैशन कह रही हूँ, ये जो वर्ड्स है ना, ये जो एडजेक्टिव वर्ड्स है, दे आर हेवीली लोडेड विद मीनिंग फॉर अस. हमें एक एक शब्द को पकड़ के इस पे चिंतन मनन करना होगा. व्हाट इज हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिवोशन? व्हाट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव? व्हाट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कंपैशन विच दीज बीइंग्स हैव, जिसकी वजह से आज वो परफेक्टेड बीइंग्स बोला जाते हैं. उनकी जो इंटेलिजेंस है उसको भी उन्होंने एक्सपेंसिव बनाया है. इट इज फार मच ग्रैंडर दैन वी कैन येट रियलाइज. एंड हम बोलते हैं अगर नेचर में कोई एरिस्टोक्रेसी है, जैसे हम बोलते हैं ना, ओ किंग, किंग होता है तो सब्जेक्ट है एंड किंग है, मानते हैं. So in nature, they are aristocratic in appearance. They are so beyond the human being का जो भी flaws है, they are flawless. जब हम बोलते हैं flawless होता है डायमंड, तो उसकी कितनी materialistically मनी में कितनी वैल्यू होती है. So you can understand the value of their intelligence also, which is far grander, and we can't even imagine how they have perfected their intelligence. They are perfect even in spirituality. They are wonderful and divine beings. We call them beings because they are powerful. They have all the power and the wisdom. They have all the siddhis. जब हम सिद्धीज के बारे में सुनते हैं अपने रिलीजन के थ्रू डिफरेंट स्टोरीज, तो जो सिद्धीज है वो रियल में उन्होंने एक्वायर करी है. जो इनर ग्रोथ है उसमें उन्होंने अपनी लोअर नेचर को कॉन्कर किया है. They have the lower nature is under the subjection of the will. आप लास्ट के पैराग्राफ में देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है, they have developed the powers or the siddhis to control the forces of nature. Such strong are the forces of nature, and they have conquered and understood these forces of nature. They have probed the secrets of the nature, and they know how the laws are working. This is what a master is, or a guru is, or an adept is. These are called as perfected beings in theosophy. ये जो टीचिंग है ना, कि जो थियोसफी में जब हाईएस्ट की बात करी जाती है तो यहाँ ओपनली डिक्लेयर किया जाता है. यहाँ ना कोई स्टोरीज बनाई जाती है, ना कोई सिंबॉलिक या एलिगोरिक मीनिंग्स है, या हिडन फॉर्म में छोटी छोटी स्टोरीज के माध्यम से नहीं है. इट इज कंप्लीटली रिवील्ड
unfolded. मतलब ये जो ज्ञान है for the modern man, simple English language में हमें explain किया गया है कि who is a perfected being. So now if we want to become pupils, we are going to be pupils under them. We will not be pupils amongst gurus और perfected beings जो कि ऐसे हमें आम जनता में घूमते फिरते मिलेंगे. No, we are not talking about them. When theosophy says, when theosophical literature is claiming that you are going to be a pupil and you will be taken up as a disciple, then you will be taken up as a disciple under these perfected beings. Such is the stupendous character of the forces that they are working with, and this is how we are going to be attached to such perfected beings. So that means if we are proposing to come into contact with them, then we have to work extraordinarily hard. We have to outshine and brighten ourselves to be able to become their disciple. मतलब हमारी भी तो कुछ रैंकिंग होनी चाहिए. हम कहते हैं ना किसी के सामने खड़े होने के लिए हमारी भी तो कुछ एक लेवल होना चाहिए, तभी वो हमें एंटर करने देगा. आज नरेंद्र मोदी जी हमें एंटर नहीं करने देंगे कि कम ओवर, आप लोगों को हम टी पार्टी पे बुला रहे हैं. इट्स नॉट going to happen like this. So even in the outer world you can see that we are not going to be called by the prime minister of a country for any other reason. You have to understand that whom we are talking about are not even human beings, they are perfected beings, एंड हम उनके डिसाइपल बनने की बात कर रहे हैं. तो ये हमारे दिमाग में लॉजिकली क्लियर हो जाना चाहिए. एंड जो मास्टर एक्सेप्ट करता है एक डिसाइपल को, उसको गुरु बनाया जाता है. अब जो अडेप्ट्स हैं, परफेक्टेड बीइंग्स हैं, वो तो बहुत सारे हैं, लेकिन जब थियोसफी में हम बात करते हैं तो जो अडेप्ट्स डिसाइपल्स को लेते हैं वो सारे अडेप्ट्स नहीं होते. ऑल्दो परफेक्टेड बीइंग्स आर मेनी, अडेप्ट्स आर मेनी, बट those who are going to take up chelas or disciples are very few in number. तो उनको हम मास्टर या गुरु बोलते हैं थियोसफी की भाषा में. ये एक और सेंटेंस है जिसको हमें एब्सोल्यूट क्लैरिटी से हमारे दिमाग में आना चाहिए. सो दिस इज द, नाउ वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टास्क कि हम क्या करने जा रहे हैं. अब इफ वी आर एंटरिंग द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, if we really agree with the literature of theosophy, then this is what we are sharpening our skills for. अब जब हम इन गुरुज की या मास्टर्स की बात करते हैं जो डिसाइपल्स को लेते हैं, उनके लिए कोई फेवरेटिज्म नहीं होता. सो जस्ट बिकॉज आई एम गोइंग टू टेक 10 lectures doesn't mean that I am going to be favorite of somebody and that master or guru is going to take me, oh मानसी ने बहुत सारे लेक्चर ले लिए, इसको तो ले लो सबसे पहले एज डिसाइपल. ऐसे नहीं होता. यहाँ पे there is no favoritism in the minds of the great ones. What they are looking for is, they are looking for people who are ready to participate in the work of evolution, people who can add value to the nature's forces when they are going to be selected as disciples. इसका क्या मतलब है कि आपने ऐसा क्या करना है या मैंने ऐसा क्या करना है that we should be selected as a disciple. तो इसको हम सिंपल फॉर्म में देखते हैं कि जब मैं एक अकाउंटेंट की तरह ज्वाइन करना चाहती हूँ किसी फर्म को, तो अनलेस एंड अनटिल आई हैव अ डिग्री और अ क्वालिफिकेशन इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सीए या सीएस मैंने किया नहीं है, कंपनी सेक्रेटरी का मैंने कोर्स ही नहीं किया, हाउ विल आई बी टेकन एज अ अकाउंटेंट, राइट? एज अ डॉक्टर ऑल्सो मेरे को प्रॉपर कोर्स करना पड़ेगा and attain that degree or that qualification so that I'm going to be ready to become a doctor. Not every, if I am going to take up humanities as a subject in class 11th and 12th, I am not going to become a doctor in college. That is correct, right? So you have to do some work and you have to qualify yourself in certain ways. तो मास्टर्स यही देखते हैं, वो ये देखते हैं कि आप क्या वैल्यू दे सकते हो एज अ बिजनेसमैन. दे आर गोइंग टू सी कि क्या वैल्यू आप दे सकते हो टू अंडरस्टैंड हाउ द नेचर्स फोर्सेस आर वर्किंग, how you can be of added advantage if you were to be taken as a disciple. If we are not capable enough, if we are handicapped, if we have certain prejudices, certain superstitions, if we do not form the right belief system, they are not going to take up us as a disciple. क्योंकि हमारे अपने prejudices से हमने अपनी boundaries बना ली हैं, और अगर हम boundary में बंधे हुए हैं, we will never be accepted as a disciple, no matter whatever extra service we go out and do publicly in the world. And we have to do some inner extra hard work to do what we have to do.
so as to become a disciple. अब यहाँ पे ये आता है कि बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्निंग पॉइंट आता है कि सिंस दे आर लुकिंग फॉर द एवोल्यूशनरी ग्रोथ ऑफ ईच इंडिविजुअल एंड दे आर गोइंग टू डील विद द होल ह्यूमैनिटी एंड अदर वर्क ऑल्सो दे हैव, सो दे हैव टू सी कि प्रोग्रेस रैपिड करने के लिए क्या क्या जो है नॉलेज बाहर के वर्ल्ड में कैसे अनफोल्ड करके स्टूडेंट्स को देनी है। और हम सब स्टूडेंट्स हैं, हम सब रेडी हैं कुछ ना कुछ सीखने के लिए। अब जब हम लोगों पे जो कि स्टूडेंट्स हैं या फिर हम देखते हैं कहीं बाहर भी जो इस तरीके की स्पिरिचुअल लाइफ को जीने की कोशिश कर रहा है, तो हम देखते हैं कि कई बार उसके जो एक्शंस हैं they they are very, he's a very discredited individual, meaning he's not accepted by the society in general. Why? Because he has done certain work कि हमें लगता है कि ये कैसे disciple बन सकता है, you know, he has brought discredit to the friends, to the family, and he's hated by other individuals कि he's not a good person, we should not talk to him, he's an introvert, he's this, he's that. We will pass out judgment on certain people without understanding who that person is and why is he going through certain suffering in the world. तो जब हम देखते हैं कि कई लोगों पे एक्स्ट्रा सफरिंग आ रही है, ज्यादा सफरिंग आ रही है, so that doesn't mean that he is not ready to be a disciple. Maybe he is paying a lot of heavy karmic baggage because he is dealing with himself to sharpen himself to become a disciple. So the important thing which theosophy teaches us to understand is that we should not judge any man, whether we are in the theosophical society or we go to any other spiritual organization. We cannot judge a person's actions, because it doesn't mean that just because I have decided and judged ki, oh, this person is not good, see, the lecture he's taking is not good, it doesn't mean that he's going to be a failure in life. No, this is my individual perception, and I may definitely be wrong, I am definitely wrong, because I cannot see the inner man with his inner growth, with his inner potential, the way the great ones can. And so perfected beings are those great ones who can see you through and through, and they know when the student is going to be ready for discipleship. So now अब हमें ये समझ आ गया कि सबसे पहले थियोसफी के रास्ते से, मैं रिविजिट कर रही हूँ स्लाइड्स को, थियोसफी के रास्ते से हम पाथ ऑफ डिसाइपलशिप पे पहुंच सकते हैं। सेकेंडली, परफेक्टेड बीइंग्स एग्जिस्ट करते हैं और हम उनके डिसाइपल्स बनेंगे जब भी हम बनेंगे। तीसरा, अब हमारे को कोई क्वालिफिकेशन एक्वायर करनी पड़ेगी टू अचीव डिसाइपलशिप। So now I have to perform something in the outer world or in my inner journey. कुछ तो मुझे करना पड़ेगा differently. फॉर एग्जाम्पल, हम बार बार ये कोट करते हैं कि ओलंपिक्स का चैंपियन है, अगर उसको ओलंपिक चैंपियन बनना है तो उसकी अपनी बॉडी को बहुत डिसिप्लिन करना है। वो स्मोक और ड्रिंकिंग नहीं करेगा क्योंकि उसकी फिजिकल बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। वो डेली एक्सरसाइजेस करेगा, सुबह उठ के वॉक्स पे जाएगा, जो भी उसके ओलंपिक्स की ग्रोथ के लिए उसको ट्रेनिंग चाहिए वो प्रॉपरली करेगा। सिमिलरली हमारा भी ओलंपिक चैंपियन वाला हाल है। वी आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन अ रेस जहां पे हमें ओलंपिक्स पे टॉप में पहुंचना है। तो हमारे लिए स्पिरिचुअल पाथ इज नॉट एन इजी पाथ। वी हैव टू डू सर्टेन एक्शंस, वी हैव टू डू सर्टेन ट्रेनिंग फॉर विद इन आवरसेल्व्स सो दैट वी शुड move ourselves or align ourselves on the spiritual journey. So what are the actions that we should perform differently? What is it that I should do for myself if I am thinking that maybe in this life or the next I want to be a disciple? So now what are actions? Actions are all karma, कि मैं कर्म कर रहा हूं। Now what is karma? अब कर्मा को समझते हैं। कर्मा को ना मैंने ब्रेक डाउन किया है, ये आता है डिसाइपलशिप एंड सम कार्मिक प्रॉब्लम्स में से आता है बुक में से। ये डॉक्टर रानी बेसेंट एक्सप्लेन करती हैं। उन्होंने एक ट्रायंगल नहीं बनाया, ट्रायंगल मैंने बनाया, उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दी। सो एक उन्होंने बोला कि थ्री फोल्ड डिविजन ऑफ कर्मा है, ठीक है, तो मैंने यहाँ ट्रायंगल बना दिया। अब थ्री फोल्ड डिविजन ऑफ कर्मा में आती है डिजायर्स, थॉट्स एंड एक्शंस। ओके, नाउ व्हाट इज एन एक्शन? एक्शन इज द रिजल्ट ऑफ एनी डिजायर एंड थॉट। जब वो इकट्ठा या एकत्रित हो जाता है और उसकी एनर्जी इतने लेवल तक पोटेंशियली हाई हो जाती है कि इट अनफोल्ड्स इटसेल्फ, ठीक है, इनटू एन एक्शन। तो कोई एक स्ट्रॉन्ग डिजायर और स्ट्रॉन्ग थॉट होगा, वो ही अनफोल्ड करेगा एक्शन में। कोई वीक डिजायर होगी और वीक थॉट होगा तो उसमें एक्शन हमें नहीं दिखेगा। जैसे कि बच्चों के एग्जाम्स आते हैं, तो जो बच्चों की डिजायर तो है कि हाँ हम पास हो जाए, हमारे 90% मार्क्स आए, डिजायर है, सोच भी रहे हैं, लेकिन वो इतनी स्ट्रॉन्ग डिजायर या थॉट नहीं है, सो इट विल नॉट अनफोल्ड इनटू एक्शन।
meaning they will not study. When they will not study, the resultant would be they will not get good marks, right? स्ट्रॉन्ग डिजायर, जैसे कि आइसक्रीम की डिजायर, अब आइसक्रीम की डिजायर जब बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, उसका थिंकिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा कि हाँ आइसक्रीम तो मुझे अभी खानी है। सो एक्शन में कैसे रिजल्ट करेगा, हम जाएंगे मार्केट और कहीं ना कहीं से जो आइसक्रीम का फ्लेवर हम खाना चाहते हैं हम ढूंढ के लाएंगे। इज दैट करेक्ट? दैट इज एक्शन। सो एक्शन इज द रिजल्ट ऑफ desire and thought, but it should be, we have to now see whether our desire is a weak desire or a strong desire, because only strong desires and thoughts can unfold into action, meaning the resultant of that thinking and desiring will result in action in the outer world. This is the threefold division of karma. This is what karma is. तो karma को हमने break down किया है into 3 levels, right, with the working of desiring, thinking and action. So desire will generate a thought. मैंने डिजायर किया आइसक्रीम की पढ़ना है, दोनों एग्जांपल्स मैंने लिए। फिर मैंने बोला थिंकिंग भी होनी चाहिए कि अब मुझे आइसक्रीम लानी कहाँ से है, मार्केट में कौन सी शॉप खुली होगी, मुझे कहाँ से लाना है। और अगर मैं पढ़ाई की बात करती हूँ, एजुकेशन की बात करती हूँ, तो मुझे कौन सी बुक को पहले खोलना है, मुझे कोई सिस्टमैटिक प्लानिंग करनी है, मैं कौन सी बुक्स में से क्या क्या पढ़ूं कि मैं पास हो जाऊं। This will result in activity. I will go act out in the world and I will complete what I want. This will open the door to circumstances. तो अगर हम स्पिरिचुअल जर्नी की बात करते हैं तो मेरी जो डिजायर्स और थॉट्स है परफेक्टली अलाइंड होनी चाहिए, perfectly aligned, so that it will result in those actions which will help me become a disciple. Correct? तो ये हमने समझ लिया नीचे से ऊपर तक के लेवल पे। Now, Dr. Annie Besant writes, what a person desires, what he thinks that he is. ओके, सो शी सेज जो पास्ट में आपने किया है, अब इस मोमेंट से पहले जो भी मैंने किया है, पास्ट में जो भी मेरी डिजायर्स रही, चाहे मैं कहती हूँ इस जन्म की चाहे पिछले जन्म की, पर मैंने पिछला जन्म नहीं देखा तो मैं इस जन्म की भी बात करूं, तो जो भी मेरे पास्ट में डिजायर्स या थॉट्स रही हैं, आज की डेट पे मैं जहां खड़ी हूं वो रिजल्टेंट है ऑफ ऑल माई डिजायरिंग एंड थिंकिंग. If I had not put in my willpower into my desiring and thinking, it would not have resulted in where I am standing right now. So, जो भी मेरे कर्म आज के बने हुए हैं वो मेरा रिजल्ट ऑफ पास्ट है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि अभी तक तो चलियो, अभी तक तो मेरे को डिसाइपल नहीं बनना था ना. आज से पहले की अगर मैं बात करती हूँ तो आज से पहले मैंने नहीं सोचा था मुझे डिसाइपल बनना है. तो मेरा सिर्फ जो आज के सर्कमस्टांसेस हैं, जो कंडीशंस है मेरे आसपास, जो मेरी फैमिली है, जो मेरी प्रोफेशन है, जो मेरा लाइफस्टाइल है, जो मेरी टेंडेंसीज एंड कैरेक्टर है, मेरा नेचर है एज अ पर्सनालिटी, whatever I am is the result of my past behavior, past habits, which has been born out of my past desiring and past thinking. This is what I am right now. But अब इस पॉइंट पे मैं बोलती हूँ नो नो, I want to shift my energy. I want to move towards spirituality. I want to go into the road of discipleship. So, what should I do? So, now, from now on, if I desire something strongly and I put my thinking into it, then definitely in my future, as per the law of karmic action, I am sowing seeds right now, and the resultant would be that in my future I am definitely going to become a disciple. So we should be very clear on this, that फ्यूचर हमारे क्रियामान कर्म से होता है, और फ्यूचर का जो क्रियामान में जो मेरा विल पावर है, जो भी मैं डिजायर और थिंकिंग में स्ट्रांगली करूंगी, तभी मैं रेडी होंगी टू पुट इन एक्शन एंड बिकम अ डिसाइपल. So actions are extremely important for me right now. But from the occult standpoint, अगर कोई मुझे आज की देखे मेरे लाइफस्टाइल को तो वो बोलेगा ओ ये तो बिल्कुल भी डिसाइपल नहीं बन सकती, सारा दिन पार्टी करती थी, सारा दिन तो खेलती रहती है, इसको कोई काम ही नहीं है, सारा दिन तो ये मूवीज देखती है और कुछ नहीं तो शॉपिंग चली जाती है, शी कैन नॉट बी द डिसाइपल. बट फ्रॉम द occult standpoint, the actions that are seen in the outer world and the actions that the perfected beings are seeing is very different. We are seeing the individual externally. हम इंडिविजुअल को बाहर से देख के जज करते हैं, मगर from the occult standpoint, actions are the least important part from a man's life. Why? Because actions have been the result of past habits and behavior, past desiring and thinking.
तो मास्टर्स ये नहीं देख रहे कि पास्ट में आपने क्या किया, उनके लिए पास्ट पता है, उनको पता है कि ये पास्ट का बिहेवियर था और ये उसका रिजल्टेंट मेरे सामने एक स्टूडेंट आज आकर थियोसॉफिकल सोसाइटी को ज्वाइन कर रहा है, तो उन्होंने आपके पास्ट को छोड़ दिया. फ्रॉम द ऑकल्ट स्टैंड पॉइंट, नाउ व्हाट दे आर गोइंग टू सी इज दैट फ्रॉम नाउ ऑन what are the desires and thoughts that you are going to carry within yourself so that you can be ready for becoming a disciple in the future. So from the occult standpoint, actions are not important because they are the result of past, but we are talking about future, and masters can look at the future of each and every individual as per what he is sowing as seeds right now. Seeds to hame hi sow karni hai. We have to sow the seeds currently in our kriyaman so that we become a disciple in the future. अब हमने लूप को समझा ऑफ थिंकिंग, डिजायरिंग एंड एक्शन. अब इसमें भी ना हम ब्रेक डाउन करेंगे थोड़ा और इसको स्क्रैम्बल करेंगे टू फाइंड आउट हाउ टू मैनिपुलेट आवर ओन एक्शंस. मैनिपुलेट का मतलब है नॉट इन द रॉन्ग वे, बट वी हैव टू चैनलाइज आवर एनर्जीज इन सच अ वे दैट वी नो व्हाट वी हैव टू डू एंड व्हाट वी डू नॉट हैव टू डू. यहाँ पे ना डिस्क्रिमिनेशन को यूज करना है, अपनी इंटेलिजेंस को यूज करना है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड. अभी तक तो मैंने बोला डिजायर, थॉट, एक्शन. अब हम बोलते हैं जो डिजायरिंग होती है वो एस्ट्रल प्लेन पे होती है, इमोशनल एस्पेक्ट, राइट. एंड देन उसके बाद हम थिंकिंग पे जाते हैं, मेंटल प्लेन पे जाते हैं. तो जब तक तो मैं डिजायर कर रही हूँ और वीक डिजायर है और लेट्स सपोज नेगेटिव या इविल डिजायर है, तो वो इविल डिजायर से भी तो मैं सोचूंगी, जैसे मेरे को किसी नेबर ने तंग किया तो मैं सोचूंगी कि अरे इसको तो कल मैं इसकी कार की हवाई निकाल दूंगी. सो डिजायरिंग एंड थिंकिंग के लेवल पे दो चीजें मैंने कर ली ऑलरेडी. एक्शन हैज बीन परफॉर्म्ड एट टू लेवल्स, ऑन द एस्ट्रल प्लेन एंड मेंटल प्लेन. बट हियर इज वेयर आई हैव द पावर. I have the power of choice. The power of choice is that on the two planes of existence, I have already thought, I have already desired an evil action. Can I now wait, hold on, and not put it into action in the physical plane? क्योंकि जो हम है पास से अभी लेके आए हैं ना अपने एक्शंस को, अगर हम इन्हीं को फॉलो करेंगे, जैसे कि मैंने अभी अपना इवल एक्शन बताया, तो अगर मैं इन इवल एक्शंस को फॉलो करूंगी तो आई एम नॉट रेडी टू बी अ डिसाइपल. तो अभी तक जो मेरे पास है, मेरी इनर चैनलाइज्ड तो है नहीं अभी एनर्जीज, एनर्जीज तो स्कैटर्ड है. तो अगर मैं एस्ट्रल प्लेन और मेंटल प्लेन पे अपनी विल पावर से नेगेटिव डिजायर्स, इविल विशफुल थिंकिंग जो मैं कर रही हूं, अगर मैं उसको उसी से 2 स्टेजेस में कॉन्कर कर लेती हूँ, आई हैव मास्टर्ड माई सेल्फ ऑफ changing my past habits, my past behavior, and my past tendencies, which have brought me here in the suffering that I am going through. क्योंकि अब मैं डिसाइपल बनने की बात कर रही हूं, तो पहले तो ईवल को तो रोकना पड़ेगा. ईवल को रोकने के लिए मुझे 2 प्लेन्स पे कॉन्स्टेंटली ये देखना पड़ेगा दैट आई विल रेसल, आई विल फाइट विद माई ओन डिजायर्स कि नहीं नहीं ये तो मुझे करना ही था, नेगेटिव तो मुझे करना ही था, ऐसे कैसे छोड़ दूं किसी को, क्योंकि मेरी प्राइड आ गई ना, ओ ये कैसे करूं, दिस इज it's going to hurt my pride, I cannot manage कि वो मुझे तंग कर रहा है, you know. So this is where my pride comes in. बट ये जो प्राइड है ना, ये मुझे डिसाइपल नहीं बनना देगा. प्राइड इज वन ऑफ द फेटर्स दैट हैज टू बी कट. तो प्राइड हमेशा ऐसे ही आईनेस के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है कि आई एम द बेस्ट, आई वांट दिस. इसको मुझे कर्व करना है अगर मुझे डिसाइपल बनना है, क्योंकि मुझे आईनेस को छोड़ना है, बिकॉज मुझे मास्टर के साथ लिंक करना है अपने आप को. तो मास्टर के साथ लिंक करने के लिए, आईनेस को छोड़ने के लिए, फर्स्ट 2 लेवल्स पे जब भी नेगेटिव या इविल डिजायर आए या इविल थॉट आए, उसको अपनी विल पावर से कर्व करके उसको एटलीस्ट फिजिकल प्लेन पे हम नहीं आने देंगे. ये तो पहला क्लू है जो कि दिया जाता है इस स्लाइड में. सेकेंड थिंग इज, अगर मैं थर्ड स्टेप पे आना चाहती हूं तो मैं सिर्फ अब से, आज से इन माई क्रियामान आई विल पुट इन टू एक्शन दोज गुड थिंग्स विच विल हेल्प मी टू मूव टुवर्ड्स डिसाइपलशिप. So if I am channeling my energy into desiring to become a disciple and doing things which should be done, you know, on the path of spirituality, then I'm going to open the doors of circumstances, and then those thoughts and those energies will burst into action. And when that will burst into action, the doors will open and I will become a disciple in the future, right? ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट आई कैन ओपन द डोर ऑफ सर्कमस्टांसेस माई सेल्फ, नोबडी एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर मी. यहां की स्लाइड तक सब समझ आ गया. अब हम आगे चलते हैं. अब
फर्स्ट स्टेज मैंने बोला था, छोटे बच्चों में क्या होता है, जहां विल पावर वीक होती है वहां डिजायर्स आर नेवर पुट इनटू एक्शन, तो हम डे ड्रीमिंग कहते हैं। छोटे बच्चे बैठ के स्क्रिबल करते रहेंगे, दे विल नॉट स्टडी। सो वी ऑल नो कि व्हेन वी डिजायर समथिंग बट द डिजायर इज वेरी वीक विल्ड, विल पावर नहीं है उसमें, इट इज ऑलवेज डे ड्रीमिंग। और जब सेकेंड स्टेज पे कोई मैं एक्टिविटी ले आती हूँ, थिंकिंग के लेवल पे ले आती हूँ कि अब तो मुझे करना ही करना है, तो मैंने फोर्सेस जनरेट करी, एनर्जी जनरेट करी अंदर से टू पुट इट इनटू एक्शन। और जो डोर खुल रहा है वो तो इनएविटेबली खुलेगा अगर वो नेगेटिव होगा। तो वेरेवर आई हैव द टाइम टू थिंक, आई ऑल्सो हैव द पावर टू रेजिस्ट evil actions, and wherever there is a time to think and I have the power, the willpower to enhance my action by putting all my desiring and thinking into action, then I am ready to become a disciple. अब जो है हमारी वीक विल नहीं होनी चाहिए, वीक डिजायरिंग नहीं होनी चाहिए। इफ वी वांट टू बिकम अ डिसाइपल, हमें स्ट्रॉन्ग करना है अपनी विल पावर को, और ये धीरे धीरे होती है, ये जल्दी से नहीं होती कि मैंने एक दिन में सोच लिया और मैं एक दिन में 24 आवर्स में आई हैव ऑल द इनर करेज एंड स्ट्रेंथ and I have very strong willpower. Willpower is built up over the years. It is built up over reincarnations, right? Time after time, life after life. So हमें विल पावर को एनहांस करना है अगर, तो हमारे को अपनी डिजायरिंग थिंकिंग, जो कि राइट थिंकिंग है एंड राइट डिजायरिंग है, उसको एक्शन में कन्वर्ट करना है। तब हम अपनी विल पावर को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि जो फोर्सेस है वो अलाइन होंगी, हमारी अपनी एनर्जीज जो है वो चैनलाइज हो जाएंगी, ऑल आर एनर्जीज गेट चैनलाइज्ड। अब जब हम डिसाइपल बनना चाहते हैं तो हमने ये समझ लिया कि हमारे को एक्शन या कर्म कैसे करना है और किस तरीके से करना है, तीनों प्लेन्स पे। अब हम समझते हैं कि जब मास्टर्स ले लेते हैं एक स्टूडेंट को जो कि रेडी है, अब उनको लगता है कि हाँ ये डिसाइपल बन सकता है, तो थियोसॉफी इंट्रोड्यूस करती है द वर्ड प्रोबेशन। वो कहती है कि द फर्स्ट थिंग that happens to the candidate on this journey of spirituality is that he enters first the Theosophical Society, and then if he's ready, then he's put on a period of probation. So there is a probationary period, and which every candidate or every student has to pass before he becomes a disciple. ठीक है? So probationary period क्या है? Probation अगर हम वर्ल्डली दुनिया में पहले समझते हैं, प्रोबेशन क्या है कि जब आपका कोई एम्प्लॉयर जो है एक एम्प्लॉय को, मतलब मुझे कोई ऑर्गेनाइजेशन आज लेती है, राइट, इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो एक विंडो पीरियड आता है, विंडो पीरियड ऑफ अ फ्यू इयर्स, 1 ईयर और 2 इयर्स, जहां मैं कॉन्ट्रैक्ट पे होती हूँ, मैंने साइन किया होता है दैट आई एम गोइंग टू ऑनर माई रिलेशनशिप विद दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड आई एम गोइंग टू वर्क फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन। सो नाउ आई एम गोइंग टू बी टेस्टेड, राइट, एक ट्रायल फेज होगा जिसमें द ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू चेक वेदर आई एम रेडी फॉर अ लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। क्या मैं एम्प्लॉय हो सकती हूँ एज अ रेगुलर पर्सन इन दैट ऑर्गेनाइजेशन? सो आई हैव टू डू सर्टेन थिंग्स, I have to perform good, I have to be honest to that company, I have to have integrity in that company, I have to work hard for that organization, bring in good profits to that company, so that that company says that yes, this employee can be now given an appointment letter, and now this appointment letter that we had given, now the employment letter is going to be a permanent letter, so the rest of the life I can work with that organization. Similarly, this is what happens when a master takes in a pupil. When a master is going to take a pupil, there is going to be a trial phase. That is the probationary phase, wherein the master is going to assess that if the student is going to pass through this trial phase, the period of probation, right, then he is going to move towards becoming a disciple. So this is what the master is checking कि long term relationship के लिए क्या ये student ready है? This is where theosophy comes in. Theosophy is going to prepare a student or a candidate to enter the period of probation. So that is the road of theosophy. That is the journey for us if we want to go through the road of theosophy. That theosophical literature, जो vast literature है, theosophy की study है, जब हम इस organization से जुड़ते हैं, कि हम अपने आप की energies को, अपनी study को, अपनी इनर जो हमारी व्हीकल्स है उसको ट्यून कर रहे होते हैं, सो दैट वी कैन बी रेडी फॉर दैट पीरियड ऑफ प्रोबेशन. दिस इज व्हाट थियोसॉफी इज गोइंग टू डू फॉर अस.
This is also the importance of all the theosophical literature work that you have been studying. तो जब हम डॉक्टर एनी बेसेंट, बिशप C.W. लेडबीटर की बात करते हैं, वो खुद ही अरहत लेवल पे इनिशिएशन पे पहुंचे, वो खुद ही जानते कि व्हाट इज डिसाइपलशिप बिकॉज दे हैव गॉन थ्रू दैट जर्नी ऑफ डिसाइपलशिप. तो हम जब क्लेम करते हैं कि ये बुक जरूर पढ़ो, हम बोलते हैं इस बुक में से इस ऑथर की किताब को कभी मत छोड़ना, जो उसने नॉलेज दी है डिसाइपल ने, उसकी knowledge is at par with what we also need for becoming a disciple, then the claims made are right. So we have to now understand logically and with common sense that are we ready as individuals to understand those books. जो बुक्स लिखी भी गई हैं, क्या मैं अग्री करती हूँ इन बुक्स से, क्या मैं पढ़ना चाहती हूँ और आगे डिसाइपल बनना चाहती हूँ. तो यहाँ पे इस स्लाइड पे जैसे बिशप C.W. लेडबीटर बोलते हैं दैट ह्यूमन प्रोग्रेस इज यूजुअली स्लो बट इट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट. हम ह्यूमन प्रोग्रेस को लाइफ आफ्टर लाइफ देखते हैं, हम इसको विद इन वन लाइफ नहीं देखते कि हम वन लाइफ में जो टारगेट है हम जल्दी जल्दी सब कुछ अचीव कर लेंगे और हम अभी के अभी 2 दिन के अंदर अंदर या मे बी 2 years के अंदर अंदर हम प्रोबेशनरी पीरियड में एंटर कर जाएंगे. इट इज अ वर्क ऑफ मेनी इयर्स एंड ही सेज that the number of perfected men are increasing and the possibility for each individual to reach that level of adeptship is possible for everybody, but for it a stupendous effort is required because we are now talking about we becoming aristocratic in nature the way they are aristocratic in nature. They are aristocratic, they are kingly. We don't even know what is the meaning of a king, we don't know the qualities of a king. हम तो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, अभी तो हम आए हैं थियोसफी में नए नए और हम अनफोल्ड करें कि हाँ ये कौन सी इन्फॉर्मेशन है, ये कौन सी गॉसिप है, लेट अस जस्ट एंजॉय थियोसफी. और हम एक दूसरे से डिस्कस करके हंसते रहते हैं जैसे छोटे बच्चे कभी खेलने लग जाते हैं पार्क में, फिर आके थोड़ी बहुत जब मैम पढ़ा देती है तो थोड़ी देर पढ़ लिया फिर खेलने निकल गए. तो अभी तो हम रेस्टलेस है सारे के सारे, बट we will make progress if we stay with theosophy and gradually we can grow through theosophy to reach that stupendous level. But for that level to be achieved, we also have to put in our efforts. Now in the modern times, that is in times like this जब materialism जो है वो peak पे है, so everybody is materialistic, everybody is going in the outer world and they are enjoying the luxuries of life. And to turn, बिल्कुल हम जैसे यू टर्न करके हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ चल रहे हैं, तो इस टाइम पे वो कहते हैं कि द प्रोग्रेस इज इजियर, द प्रोग्रेस इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर अस एंड वी कैन हेसन, मीनिंग effortlessly increase our progress in multiple manner. जैसे मल्टीपल्स होते 2 4 8, मतलब वो जो टेबल है 8 से सीधे 16 ये जंप होगी हमारी. सो मल्टीपल्स में होगी हमारी ग्रोथ अगर हम अभी से धीरे धीरे थोड़ा सा थियोसफी को समझना शुरू कर दें. एंड वी कैन कंप्रेस इनटू अ फ्यू लाइव्स the evolution or the growth which may have required thousands of years in other times. तो जैसे हम बात करते हैं इन द युगास जब सारे सच्चे होते हैं, लेट्स सपोज सारे सत्ययुग में बैठे हैं तो सारे ही सच बोल रहे हैं, तो मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है, राइट? तो अब जब सारे ही सच बोल रहे हैं तो मेरी ग्रोथ बहुत स्लो हो जाएगी क्योंकि मैं भी सच बोल रही हूँ वो भी सच बोल रहे हैं. पर मटीरियलिज्म का टाइम है, कलयुग हम बोलते हैं, तो लेट्स सपोज 99 लोग झूठ बोल रहे हैं और मैं ही एक जो कोशिश कर रही हूँ मैं सच बोलूंगी, आई विल बी ट्रूथफुल. सो ट्रूथफुल इज अ क्वालिटी दैट इज रिक्वायर्ड ऑन द पाथ ऑफ डिसाइपलशिप. अब अगर मैं ही सच बोल रही हूँ और सारे झूठ बोल रहे हैं, देन हाउ एम आई गोइंग टू स्पीक द ट्रूथ? अगर मैं सच बोलूंगी तो मेरे को तो जेल में डाल देंगे. तो मुझे ट्रूथ की डिस्क्रिमिनेशन समझनी है कि मुझे कहाँ पर ट्रूथ कैसे बोलना है, कितना बोलना है, कब बोलना है. पर अगर मैं ट्रूथफुलनेस को एज अ वर्च्यू अपने लिए कलेक्ट करती हूँ और मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, what I'm doing is I'm moving in the opposite direction of how the humanity is progressing. Humanity is progressing in the side of materialism. I am going to take a U-turn. So I am going to hasten my progress. Why? Because 99 people are lying when I am trying to live by the truth. Okay. So this is what he means when he says you can hasten your progress and compress into a few lives the evolution which would otherwise have taken thousands of years. And that is the effort which is being made by students of the Theosophical Society through Theosophy. But this effort, he says, has to be carried on year after year. It is not that I will just do it on one day and I'll leave the 364 days not doing anything. I have to gradually, by my own effort, by my own self control, I have to perform myself
year after year, gradually, so that I can make definite progress in life. Because what we are going to do is, we are not just training our physical body, we are training our higher bodies, our inner bodies. We talk about 7 bodies of man. And these 7 bodies which we are carrying, which we are wearing, they are our vehicles. So we are polishing them and we are purifying them. So when we are practicing something in the physical world, like truthfulness, I am practicing non-stealing in the physical world, I am trying to imbibe the virtue of love and compassion, right? Or I'm trying to be more tolerant towards the society, or towards anything that is happening wrong in the society. I am becoming a tolerant person. So I am not just training my physical body by stopping myself from not doing wrong action, but I am training my inner vehicles. And those higher vehicles and higher bodies, when they become purified, and there is a channeling, right? And if there is a channeling and alignment of all these inner vehicles, then it will manifest itself on the physical plane sometime later. तो वो जो है unfold तो physical plane में later होगा, but we are training our higher bodies by the work that we are doing. So it will not, whatever we are doing in our, for our inner growth, it may not reflect in the physical world, because amongst the individuals that we are living, we are still human beings. Is that correct? अब हमें नेक्स्ट स्टेप देखना है कि प्रोबेशनरी पीरियड जो है, अब हमने समझा कि पीरियड ऑफ प्रोबेशन आता है, एंड पीरियड ऑफ प्रोबेशन को एंटर करने के लिए हमें थियोसॉफी को पढ़ना है. अब थियोसॉफिकल लिटरेचर में क्या ऐसा दिया हुआ है जो हमें अपने लिए परफेक्टली पढ़ना है, मतलब उस जो सिलेबस को है उसको नहीं छोड़ना, बिकॉज देयर इज अ सिलेबस दैट हैज बीन गिवन टू अस. If we know what the syllabus is, and we know what to study from the theosophical literature and what to understand, because this is the theory part. If we can master the theory of theosophy, then we are ready to become practical theosophists, and we are also ready that we will become disciples and get practical training for all the work that has to be done for the evolutionary growth. ठीक है, तो हमें ये करना है. तो सबसे पहले थियोसॉफी में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज मैंने सीखी है, जो कि शंकर लॉज के लेक्चर्स में, फिजिकल मीटिंग्स में, आई ऑलवेज टेल पीपल प्लीज कम फॉर द फिजिकल मीटिंग लेक्चर्स, बिकॉज आई हैव लर्नड इट ओनली थ्रू फिजिकल मीटिंग्स, नॉट अदरवाइज. बुक्स में जितना भी लिखा है मैटर खुद से पढ़ तो लेते हो आप, विच इज वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर इनर ग्रोथ, बट जब फिजिकल मीटिंग्स में जब हमारे सीनियर्स हमें सिखाते हैं, दैट इज कमेंडेबल. तो हमें जो बार बार सिखाया गया है, जो मैंने समझा है अपने सीनियर से, वो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका बिलीफ सिस्टम क्या है. आपको एक नया बिलीफ सिस्टम बनाना है, बिलीफ सिस्टम दैट थियोसॉफी कैन पुट मी इनटू द पीरियड ऑफ प्रोबेशन एंड आई कैन बिकम अ डिसाइपल. तो थियोसॉफी के लिटरेचर को, जो 7 प्लेन्स हैं, लॉज ऑफ नेचर के साथ क्या मैं अलाइंड हूँ? क्या मैं जो स्टडी करती हूँ, ये जो बुक्स पढ़ा रहे हैं, जिन सोलर सिस्टम और जो एस्ट्रल प्लेन, एस्ट्रल बॉडी, जो इन शब्दों की बात कर रहे हैं, ये पूरी थ्योरी है, ये थ्योरी है, ये बेस है या फाउंडेशन ऑफ थियोसॉफी है. क्या मैं इस पे खरी उतरती हूँ? डू आई अग्री विद द टीचिंग्स ऑफ थियोसॉफी? Because if I agree with the teachings of theosophy, then I'm forming a new belief system, and that belief system is that I am aligned with the teachings of theosophy. I am confident that the theosophical teachings are true. They are true for me. I don't care about others. बाहर वाले किसी भी संस्था में जाएं, कोई भी लेक्चर अटेंड करे, कोई भी यूट्यूब वीडियो देखे, आई डोंट केयर. आई हैव टू आस्क माई सेल्फ, दिस इज द इंटेलिजेंट क्वेश्चन दैट आई आस्क माई सेल्फ, that do I agree with the teachings of theosophy? Because if I do agree with the teachings of theosophy, then I am aligned with those teachings. I am confident that those teachings are true. I am convinced about those teachings, and I am going to grow through these teachings. And they talk also about the hierarchy of perfected beings, how perfection has been attained from the level of humanity, and then higher beings जो है उसमें भी ग्रेट वाइट ब्रदरहुड की बात करी जाती है. तो वो जो ग्रेट वाइट ब्रदरहुड है, जो कि जो ह्यूमैनिटी है, ह्यूमन एवोल्यूशन करवा रहा है, वो कैसे करवा रहा है ये एवोल्यूशन, ये भी रिवील किया गया है थियोसॉफिकल लिटरेचर में. तो क्या मैं कन्विंस्ड हूं कि ये ग्रेट वाइट ब्रदरहुड एग्जिस्ट करता है? दिस इज अ क्वेश्चन आई हैव टू आस्क माई सेल्फ. आई डोंट हैव टू आस्क एनी अदर पर्सन, एंड दिस इज अ लाइफ चेंजिंग इवेंट फॉर मी. बिकॉज जो बाहर वाला है ना, वो मुझ पे हंसेगा, हे भगवान ये तो बूढ़ों वाली बातें करती है, ऐसे लोग थोड़ा ना एग्जिस्ट करते हैं, तू अपना ऑफिस जा, काम कर, खाना बना और सो जा. नो पॉइंट इन टॉकिंग अबाउट थिंग्स दैट डोंट एग्जिस्ट. Right? So people will say this doesn't exist. What are you talking about?
दिस डजंट एग्जिस्ट, एस्ट्रल प्लेन, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, नो 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 नो। तो लोग ऐसे बोलेंगे। तो मुझे लोगों की नहीं सुननी, मुझे खुद से डिसाइफर करना है, अनलॉक करना है, क्योंकि ये सबसे पहला स्टेप है। अगर मेरा बिलीफ सिस्टम ही नहीं है, मैं थियोसॉफिकल लिटरेचर के साथ अलाइंड ही नहीं हूं, तो मैं आगे कैसे चलूंगी? एटलीस्ट थियोसॉफी से तो नहीं चल सकती। मे बी आई हैव एनी अदर पाथ थ्रू विच आई कैन ग्रो। तो ये तो थियोसॉफी से मुझे अपना बिलीफ सिस्टम खुद ही अनफोल्ड करना है। मेरे को थोड़ी थोड़ी लिटरेचर और बुक्स पढ़ के समझना है कि क्या इन किताबों में जो लिखा है वो सच है। क्योंकि डॉक्टर एनी बेसेंट और CW लेडबीटर अब नहीं आ सकते, वो फिजिकल प्लेन पे आके अब नहीं बोल सकते कि मैं आ गया हूं और अब मैं तुम्हें दोबारा पढ़ाता हूँ, चलो मैं तुम्हें दिखा के आऊं। सो दे कैन नॉट कैरी अस इन एन एरोप्लेन एंड टेक अस एंड शो अस व्हाट इट इज। वी हैव टू अग्री विद द थियोरी बिकॉज करंटली वी डू नॉट हैव द एक्सपीरियंस। जैसे कि साइंस में क्या होता है, मैं अग्री करती हूँ कि रेनबो कलर्स होते हैं, मैं अग्री करती हूँ कि प्रिज्म से जब लाइट पास करती है तो रिफ्रैक्शन होता है। अब रिफ्रैक्शन क्या है मुझे तो नहीं पता, मगर साइंस बोलती है रिफ्रैक्शन होता है। साइंस बोलती है कि मेरे अंदर लिवर पड़ा हुआ है, मैंने तो नहीं देखा। आई एम अग्रीइंग विद द टीचिंग्स ऑफ दोज साइंटिस्ट, बट आई हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड इट माई सेल्फ। मैंने किसी को काट के उसका लिवर नहीं देखा, बट स्टिल आई एम अग्री। सेम वे इट हैपेंस इन स्पिरिचुअलिटी। when you are in spirituality, because you cannot perform those experiments yourself. Currently we are at a stage where our inner dormant tools have not been unfolded. हमारी जो इनर वर्किंग्स है अभी नहीं है, तो हमारे हाथ में हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस तो है नहीं, तो हमें किसी की तो एक्सपीरियंस को सच मानना ही पड़ेगा। तो जब हम इनके एक्सपीरियंस को अगर हम सच मानते हैं तो हम शायद थियोसॉफी के माध्यम से चल पाएंगे। अब इसके बाद आता है डिसिप्लिन। जब मैं अपनी बॉडी को डिसिप्लिन करती हूँ, जो कि थियोसॉफी में सिखाया जाता है, फिजिकल बॉडी है, एस्ट्रल बॉडी है, मेंटल बॉडी है, ये तीन बॉडीज को पूरा पढ़ाकर समझाया जाता है कि इनको डिसिप्लिन कैसे करना है। व्हाई एम आई डिसिप्लिनिंग दीज बॉडीज? बिकॉज आई हैव टू नाउ प्योरीफाई देम। जब भी मैं प्योरीफाई करूंगी इन बॉडीज को, तभी तो मैं आगे चल पाऊंगी थ्रू द पाथ ऑफ थियोसॉफी। क्योंकि जब मैं प्योरीफाई नहीं करूंगी तो आई एम नॉट रेडी फॉर द प्रोबेशन। Next is devotion. Your devotion towards theosophy also must be complete. जैसे कि हमारी अपनी डिवोशन होती है अपने रिलीजन के लिए, या हम डिवोटेड होते हैं अपने बच्चों को, अपने काम को, वो भी एक डिवोशन है। सिमिलरली आवर डिवोशन शुड बी कंप्लीट व्हेन वी टॉक अबाउट थियोसॉफी। A wrong conception of God is one of the most serious hindrances under which a man can suffer. This is what C.W. Leadbeater has claimed. He says a man cannot ride two horses at once. That means you cannot agree with two different teachings of two different spiritual organizations and then become a disciple of the master for only one spiritual organization. You can have only one guru. You can have only one master. And for that to be aligned to, you have to be a part of only one organization. But if you see that you are a part of an organization where you have worked hard for, let's suppose, 7 years, 10 years, you give yourself some time, devote yourself completely to that spiritual organization, and then see, am I ready for this path? Because if you do not align yourself or you do not agree with the teachings of that spiritual organization, leave it at once. Okay? Only one path is there and only one master is there. And we cannot be joining two organizations and then say, oh, I should become a disciple of that master. No, you cannot do that. It's not possible. You cannot serve two different masters at once. ये स्कूल लेवल की बात नहीं है कि साइंस के भी टीचर होने चाहिए, मैथ्स के भी होने चाहिए, इंग्लिश के भी होने चाहिए। हम बात कर रहे हैं उन परफेक्टेड बीइंग्स को जो आपको ओवरऑल ऑल राउंड डेवलपमेंट सिखाने वाले हैं। वो आपको सिखाने वाले हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट करके आपने परफेक्शन कैसे अचीव करना है। सो ओनली वन मास्टर कैन ट्रेन यू, एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मास्टर्स हु आर इजीली अवेलेबल और एक्सेसिबल टू ह्यूमन बीइंग्स। वी आर टॉकिंग अबाउट परफेक्टेड बीइंग्स. And when they are talking about a disciple to be taken, they mean serious business. It's not a fun way for them कि आज disciple लेंगे, कल इसको छोड़ देंगे, कल कोई नया उठा लेंगे. Once they have formed a bond with you, it's a karmic tie. That karmic tie comes out of a past relationship with you. It cannot be broken. So the masters are serious about it, although we at our stage may not be serious. So we cannot ride two horses at once. The next point is that duties must also be fulfilled. अगर हम अपनी ड्यूटीज को फुलफिल नहीं करते हैं, जो हमारी कार्मिक ड्यूटीज है, हमने क्या किया है, हमारे सर्कमस्टांसेस है ऑफ आवर बर्थ, उसकी वजह से हम कुछ ड्यूटीज निभा रहे हैं टुवर्ड्स आवर फैमिली, टुवर्ड्स आवर सोसाइटी, towards the place we are born. We cannot leave our karma and just be devoted to spirituality. We have to perform our external duties in the world. जो कार्मिक टाई हैं, हमारे कार्मिक बॉन्ड्स हैं with our loved ones,
और विद आवर फैमिली मेंबर्स और विद द सोसाइटी इन विच वी आर लिविंग, वहां पे हमारी कुछ ड्यूटीज है, वी हैव टू परफॉर्म दोज ड्यूटीज, आवर नेशनल ड्यूटीज, our societal duties, our community duties, our family duties. We cannot run away from duties. This is not the path of theosophy. Theosophy does not say कि संन्यास ले लो और घर बैठ जाओ, या फिर संन्यास लो और घर ही छोड़ दो. It says perform your karmic duties and do all this training for yourself, and you will be ready to be chosen as a disciple. Now, what are the qualifications? मैंने बार बार qualifications हम सब जानते हैं, पर मैं फिर भी थोड़ा सा hints दे देती हूँ. Qualifications है, क्योंकि अब टाइम भी हो रहा है, so I'll go a little faster. The first thing is discrimination. So सबसे पहली हमारी बुक आती है, जो हम सबको एक छोटी सी बुक देते हैं, At the Feet of the Master. और ये बुक जो है मास्टर KH ने एल्सियन को, जय कृष्ण मूर्ति को सिखाई थी when he was a young boy. So the first sentence that comes in discrimination is that the first of these qualifications is discrimination, and this is usually taken as the discrimination between the real and the unreal, which leads men to enter the path. It is this, but it is also much more, and it needs to be practiced not only at the beginning of the path, but at every step of it, every day until the end. तो ये हमें रियल और अनरियल का डिफरेंस पता होना चाहिए. If we are addicted to the joys of the world, we are not ready to become a disciple. The portal will only swing open if we have possessed certain qualities within ourselves, and those possession of our qualities is something we are going to carry life after life. They are like jewels on a crown. वो हमारा real treasure है, not the jewelry in the locker. The jewelry that you are going to collect is the possession of your lifetimes, which will make you achieve perfection. So you have to have splendid courage, you have to have rare self-sacrifice, you have to have high type of devotion, high type of intelligence. They don't say leave your intelligence away. So this is how you have to sharpen your skills. Then यहाँ हम थियोसॉफिकल सोसाइटी में हमेशा पंचशील की बात करते हैं, जो लॉर्ड बुद्धा ने सिखाई. आई विल नॉट गो थ्रू दैट. यम नियम की हम बात करते हैं, जो कि आप बहुत सारे टेक्स्ट में पढ़ते रहते हो, पतंजलि योगा सूत्रास में, ये हम सबको करना है. कैरेक्टर बिल्डिंग इसको बोलती है एनी बेसेंट मॉडर्न बुक्स में, मॉडर्न पब्लिक के लिए. देखो, जो चीजें हम हिंदूज है ना, हम अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स ओल्ड लिटरेचर, वैदिक लिटरेचर, तो हमें मजा आता है. मुझे तो स्पेशली मजा आता है, यम नियम करो, यम नियम करो. बट मॉडर्न लैंग्वेज में अभी किसी को बताना हो तो कैरेक्टर बिल्डिंग इज द स्टेप. हाउ डू यू बिल्ड कैरेक्टर, हाउ डू यू बिल्ड न्यू हैबिट्स, व्हाट आर द इविल हैबिट्स दैट यू हैव टू कर्ब एंड न्यू हैबिट्स दैट यू हैव टू गेट. तो ये सब हमें करना है. मेडिटेशन जरूर करना है, सर्विस को समझना है पहले कॉन्सेप्ट को. तो लेकिन जब पूरी पर्सनल ड्यूटीज फुलफिल होंगी, तब हमें एडेड सर्विसेज की बात करनी है. नाउ व्हेन द मास्टर्स आर लुकिंग एट अ स्टूडेंट who is going to become a candidate, तो वो देखते हैं कि ये प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर तुम लोगों को अचीव करना है. तुम यम नियम भी करो, वो कहते हैं अपनी मॉरल एथिक्स को थोड़ा शार्पन करो, पंचशील को करो. वो बार बार रिपीट करते हैं, एट द फीट ऑफ द मास्टर ही कर लो जितना कर सकते हो. वो तो बार बार ये कहते हैं, और ये हमारे सीनियर्स ही हमें बता देते हैं. तो सीनियर्स से मैं सुनती रहती हूँ, सो आई नो कि हाँ, ये तो करना ही करना है. चाहे धीरे धीरे करो, थोड़ा थोड़ा करो, पार्शियली करो, और इसको बढ़ाते जाओ, अपने एक्शंस में लाओ. सिर्फ थियोरेटिकली बात नहीं करो, इनको एक्शंस में धीरे धीरे लेके आओ, अपनी वीकनेसेस को कॉन्कर करो. तो ये प्योरिटी जो है, मुझे क्यों अचीव करनी है इस लाइफ में? अगर मुझे डिसाइपल बनना है, व्हाट इज द प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर दैट द मास्टर्स आर लुकिंग फॉर, व्हाई डू दे नीड इट? तो इसमें ना आंसर बुक में ही आता है. They say it is not well to minimize the urgency of the demand, because the qualities have to be achieved either now or later. If you conquer your weaknesses now and become a disciple, then it is better for you. Because if you have not conquered your weaknesses, you are leaving loopholes, crevices. Crevices means loopholes. And आप जो है डार्क पावर्स को अथॉरिटी दे रहे हो, डार्क पावर्स को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, कि आपकी वीकनेसेस की वजह से वो आप डार्क पाथ की तरफ मुड़ जाओगे. जबकि थियोसॉफी वाइट पाथ की बात करता है. तो थियोसॉफी जब वाइट पाथ की बात करता है, वो कहता है प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर इज अ मस्ट. लेकिन अगर आप प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर अभी से स्टार्ट नहीं करोगे, लेकिन सिर्फ मेडिटेशन करोगे, जैसे मैं रोज मेडिटेशन करती हूँ 3 आवर्स, पर प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर मुझे नहीं करना. मैं रोज सड़क पे चिल्लाऊंगी, मैं सच नहीं बोलूंगी, मैं जहां मिलेगा किसी का पेन भी चुरा लूंगी, सब अपने पास रख लूंगी. बट इफ आई एम नॉट
if I'm doing all these negative things, एक तो मैं negative karma generate कर रही हूँ by doing all the negativities. तो मैं disciple कैसे बनूंगी? Because I have a lot of karmic baggage. The masters will not take me. Secondly, I am, because I'm not conquering my weaknesses now, like I'm not being truthful now, so the dark powers का जो फोर्सेस है वो मैं उस तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगी और धीरे धीरे मैं डार्क पाथ की तरफ मुड़ जाऊंगी. तो ये जो लूप होल्स है ना, मैंने अपने अंदर नहीं छोड़ने. दीज आर क्रेविसेस विच आर afford a point of vantage to the dark powers. They are always looking for such individuals. And this is when the guru will appear. When we have conquered ourselves, built up our own character, that is when the guru is going to appear. तो आई थिंक टाइम हो गया है सर, अब बंद कर देते हैं. एंड डिसाइपल की एक स्लाइड है, बट वही है कि हाउ यू एंटर द प्रोबेशन एंड व्हाट इज, मैं एक ये लास्ट स्लाइड कंप्लीट कर देती हूँ कि मास्टर एंड डिसाइपल के बीच में कार्मिक टाई होता है. That relationship is coming out of past. They know you, they have known all your lives, and they can see what has been unfolded within you. So they know when the student is ready to become a candidate, to become a disciple, because they are not just seeing my physical body, they are seeing all my bodies. उनको सारी इनर बॉडीज और उनकी ग्रोथ पता है. और जब तक मेरी अनफोल्डमेंट सर्टेन लेवल पर नहीं आ जाती, मतलब 100 में से 40 मार्क्स तो लेके आऊं पासिंग मार्क्स, तो जब तक मैं ये क्वालिफिकेशंस कुछ परसेंटेज तक अचीव नहीं करती, तब तक मैं डिसाइपल बनने के लिए रेडी नहीं हूं. सो दिस इज व्हाट माय टारगेट शुड बी. एंड तभी मास्टर जो है मुझे लेंगे एज अ डिसाइपल. एंड आई एम एंडिंग माय टॉक विद दिस स्लाइड कि कौन सी रेफरेंस बुक्स को मैंने यूज किया. This is The Masters and the Path by Bishop C.W. Leadbeater, Path of Discipleship by Dr. Annie Besant, Discipleship and Some Karmic Problems by Dr. Annie Besant, and At the Feet of the Master, Alcyon. Thank you, everyone. Thank you very much. Thank you. बहुत अच्छा रहा. किसी को कोई सवाल पूछना है या कोई कमेंट करना तो प्लीज कर सकते हैं. सवाल तो पूछने की यही नहीं है, लेकिन मानसी जी ने सीरियसनेस ऑफ बीइंग अ मेंबर यहाँ से शुरू किया है और बाद में वो डिसाइपल कैसे बनता ये बताया. बहुत खूब सुंदर रीति से ये सभी बातें अनफोल्ड की है. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद. आपने सही बोला एकदम शीतल जी. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you, Mansi. Very nice, beautiful presentation. थैंक यू मानसी जी, बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने एक्सप्लेन किया और बहुत सी चीजें जो मुझे अभी कंफ्यूज कर रहा था वो आज क्लियरिटी मिली. जैसे इनिशिएशन और प्रोबेशनरी पाथ. तो प्रोबेशनरी पाथ को मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि ये कहाँ, मैंने इनिशिएशन को तो समझ रही थी थोड़ा, लेकिन प्रोबेशनरी पाथ एक्चुअली क्या है ये नहीं समझ में आ रहा था. तो आज मुझे आपके इस लेक्चर से समझ में आया, इसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू. और मुझे सबसे अच्छा लगा यहाँ पर कि मास्टर के यहाँ कोई फेवरिज्म नहीं है. तो आप क्या हो उनको सब कुछ पता है, आप उनसे कुछ झूठ नहीं बोल सकते, कुछ छुपा नहीं सकते हैं. आप जो अंदर से है वो एक्चुअली उनको पता है. बहुत खूबसूरती से आपने एक्सप्लेन किया और बहुत अच्छा लगा. आपको सुनना तो वैसे भी मुझे हमेशा अच्छा लगता है और आज इस मंच पे तो और भी खूबसूरत लगा. थैंक यू मानसी. बहुत दिनों के बाद एक बहुत अच्छा लेक्चर सुना with example. Very nicely you are presented. Thank you very much. Thank you very much. थैंक यू. कोई सवाल है किसी पे, अगर कोई मेंबर के, तो मेरे ख्याल से. हाँ बोलिए, कौन बोल सर. रहे? मेरा एक सवाल था कि डिसाइपल और प्यूपिल में क्या अंतर है, वो मैं जानना चाहती हूँ. डिसाइपल और प्यूपिल एक ही चीज है. चेला, डिसाइपल, प्यूपिल ये सब शब्द हैं एक ही चीज को बताने के लिए. कि जो ट्रेनिंग में आता है, जिसको मास्टर अपने ट्रेनिंग में लेते हैं, तो वो जो है उसको शिष्य बोले, डिसाइपल बोले, चेला बोले, प्यूपिल बोले, कुछ भी बोले. वहां भी कुछ हायरार्की होगी? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, हमारी नॉलेज में नहीं है. जब कोई है तो हमें नहीं पता. और कोई सवाल है अगर तो हम मीटिंग को क्लोज करते हैं आज.
सो मेरे ख्याल से अब हम मीटिंग को क्लोज कर आज सकते एक हैं। मैसेज पढ़ा था सर। हाँ जी जी, हाँ। कौन? बस एक मैसेज पढ़ा था मैंने हाँ हाँ, आज बोलिए 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 अ, शीतल जी। कि a nice message written on a balloon which was flying high up in the sky. It is not what is outside, but what's inside that takes you to the top. So आज का जो मानसी जी ने बोला है तो वही है कि what is inside which takes you to the top. जी Thank बिल्कुल you. बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो अब हम मीटिंग को समाप्त करते हैं यूनिवर्सल प्रेयर के साथ में। Overhead in life, vibrant in every atom. Overhead in light, shining in every creature. Overhead in love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Thank you to all. Thank you to the speaker. Thank you very much. Meeting is closed.